Assalamu alaikum, dear students. I'm Farooq Abdullah, and our today's topic is narration, that you call direct and indirect sentences in English. This is very interesting and this is very easy topic. I don't know that why the students are afraid of this topic. I am going to tell you in a very simple, in a very easy way. Now, first you must learn that what is a direct speech and what is an indirect speech. For example, you are sitting in the class and I say to you that I will give you a prize tomorrow. Understand what I said? I will give you a prize tomorrow. This is what I say you in the class. So when you go back to your home and you tell it to your mother, you tell it to your brother, you tell it to your father or any other family member, how will you say it? You will tell it to your brother or father in two ways. Either you will say that Sir Farooq Abdullah said to me, I will give you a prize tomorrow. Sir Farooq Abdullah said to me that I will give you a prize tomorrow. Either you will say it like this, or you will say that Sir Farooq Abdullah told me that he would give me a prize the coming day, the next day. Right? So the first sentence that you told to your brother, that you told to your father, that Sir Farooq Abdullah said to me, I will give you a prize tomorrow. That was direct speech. Direct speech means the exact spoken words of the speaker. Direct words of the speaker are called direct speech. The second sentence that you spoke in front of your father or brother, that Sir Farooq Abdullah told me that he would give me a prize, these are indirect words of the speaker. These are not direct words. That you know that the pronoun that you are using he, that he would give me prize. And in the first sentence you use I will give you prize. So how a direct sentence is converted into indirect sentence. We will discuss these rules, that how you change the narration. We will discuss these rules in this lecture in the slides that I'm going to just run in front of you. You must keep two things in your mind, that you will change two things to convert a direct sentence into indirect. You will change two things. One change is pronoun and the other change is verb. Rest of everything is quite general. That is quite common. That won't be quite difficult for you people to change, right? If you are, using that in place of commas, if you are using told in place of said, you are using asked in place of said. So these are quite, ordinary things. These are the things that you can even solve with your common sense. Now, major things I am telling you, that major changes from direct to indirect speech are two, and those two major changes are change in pronoun and change in verb. If you have learned how to change pronoun, and the second thing, if you have learned how to change verb, that will be all okay, inshallah. So coming towards the slides. Well, here is the first slide. Look here in this slide. There is a direct sentence and then there is indirect sentence. What is direct sentence? Paul said, comma, inverted commas, I am feeling ill, and inverted commas closed. अब जो स्पीच इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखी हुई है, ये पॉल के एग्जैक्ट डायरेक्ट वर्ड्स हैं, और वो वर्ड्स क्या हैं? आई एम फीलिंग इल. जो स्पीच आपकी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिखी हुई है, दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. और जो स्पीच इन्वर्टेड कॉमर्स से बाहर लिखी हुई है, यानी पॉल सेड, ये है रिपोर्टिंग स्पीच. एंड द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. इनडायरेक्ट सेंटेंस देखें तो पॉल सेड, कॉमास को हटाकर पहली तब्दीली ये की गई है, दैट लगा हुआ है. आई को रिप्लेस करके ही लगाया हुआ है. एम को रिप्लेस करके वाज लगाया हुआ है. फीलिंग इल. अब क्या जादू नहीं है ये कि मतलब फिर भी वही है और सेंटेंस
तब्दील हो गया है, एम की जगह वाज लग गया, आई ही बन गया और मतलब फिर भी वही रहा, तो वाकई ये जादू लग रहा है। तो ये जादू कैसे मुमकिन है, कैसे होता है ये जादू, हम ये अभी सीखेंगे। व्हाट आर द चेंजेस, क्या तब्दीलियाँ हुई। तब्दीलियों में पहली तब्दीली ये हुई कि नो स्पीच मार्कर्स, ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं ये ख़त्म हो गए। वी एडिड दैट, हमने दैट लगाया कॉमास को हटाकर। अच्छा, असर्टिव सेंटेंसेस में अगर आप दैट नाम भी लगाएं तो खैर है, ये ऑप्शनल होता है। मेजर तब्दीली जो मैं आपको बता रहा था पहले भी कि आप की मेजर तब्दीलियों में जो दो मेजर तब्दीलियां हैं, एक है कि आपके प्रोनाउन की तब्दीली, तो हमने प्रोनाउन तब्दील किया, आई को ही कर दिया। दूसरी मेजर तब्दीली हमने टेंस की, हमने एम को वाज कर दिया। ठीक है, व्हाट चेंजेस डिड यू नोटिस, कौन कौन सी। ओमिशन ऑफ कॉमा, कॉमा आपने ख़त्म किया। देखें कॉमा आपने सेंटेंस में पाल सेड दैट ही वाज फीलिंग इल, कॉमा नहीं है। यूज़ ऑफ दैट, दैट लगाया आपने। चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन आपने तब्दील किया, आई को आपने ही बना दिया। चेंज ऑफ टेंस, टेंस आपने तब्दील किया, एम को देखें आपने वाज कर दिया। अच्छा, चेंज ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस आर टाइम, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम और एंड प्लेस भी तब्दील होते हैं, वो कैसे तब्दील होते हैं। हाउ टू चेंज स्टेटमेंट्स, अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंसेस ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, मैंने आपको बताई थी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंसेस समझाए थे, और आपको याद हो तो मैंने कहा था कि उसमें एक एक्शन हो रहा होता है या सिंपली एक एक्शन नहीं हो रहा होता है। तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंसेस के डायरेक्ट और सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। हर टाइप ऑफ सेंटेंस को इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के मेथड्स डिफरेंट हैं। असर्टिव सेंटेंसेस का मेथड डिफरेंट है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का मेथड डिफरेंट है, इंट्रैगेटिव सेंटेंसेस का मेथड डिफरेंट है। वो बहरहाल अगर आपको असर्टिव सेंटेंसेस का मेथड पता चल गया तो वो आपके लिए कोई मसला नहीं है। क्या तब्दीलियां आपने करनी होती हैं। अच्छा, जो मैं बात कर रहा हूँ कि प्रोनाउन की तब्दीली और टेंस की तब्दीली, मेजर दो ये तब्दीलियाँ हैं। तो पहले हम टेंस की तब्दीली देख रहे हैं कि टेंस कैसे तब्दील होता है। ये ज़रा स्टेटमेंट पढ़ें। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द डायरेक्ट स्पीच स्टेटमेंट इज़ प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस लगा हुआ हो, जैसे नीचे सेंटेंस में देखें ना, माय फ्रेंड सेज, प्रेजेंट टेंस है ना, या फिर अगर फ्यूचर टेंस लगा हुआ हो, नीचे वाले सेंटेंस में देखिए माय ग्रैनी विल से फ्यूचर टेंस है, और ऊपर माय फ्रेंड सेज ये भी प्रेजेंट टेंस है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है देन इट रिमेन्स सेम इन इनडायरेक्ट स्पीच टू, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा ही रहेगा। नो चेंज इन टेंस, टेंस में कोई तब्दीली नहीं होगी। देखो, माय फ्रेंड सेज ही इज़ वेरी हैंडसम, माय फ्रेंड सेज दैट ही इज़ वेरी हैंडसम, कोई तब्दीली नहीं की गई है। माय ग्रैनी विल से यू नीड टू ईट वेल, माय ग्रैनी विल से दैट यू नीड टू ईट वेल, कोई तब्दीली नहीं की गई है। यानी देयर वोंट बी एनी चेंज इन टेंस इफ़ यूर रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन प्रेजेंट टेंस और इन फ्यूचर टेंस। आपकी रिपोर्टिंग स्पीच यानी जो रिपोर्टिंग स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाली स्पीच है, वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो फिर टेंस की तब्दीली नहीं होगी, बस फिर सिर्फ आप प्रोनाउन तब्दील करेंगे। लेकिन अगर आपकी ये रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कामा से बाहर वाली स्पीच पास्ट में है, यानी माय फ्रेंड सेज की जगह सेड लगा हुआ है, माय ग्रैनी विल से की जगह सेड लगा हुआ है, तो फिर क्या तब्दीलियां करनी है। इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द इज इन द पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में यानी सेड लगा हुआ है इन द डायरेक्ट स्टेटमेंट, then the verbs within the inverted commas will change in indirect speech statement। indirect speech में verb आपका तब्दील होगा। यानी जैसे यहाँ पर लगा हुआ है my friend says, अगर my friend said लगा हुआ हो
तो आगे जो रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कामाज वाली स्पीच है, उसके टेंस में तब्दीलियां कैसे होंगी। बड़ी आसान सी तब्दीलियां हैं, आसान सा तरीक़ाकार है। वो ये है कि जहाँ पर इज़ एम आर लगा हुआ हो रिपोर्टेड स्पीच में, नीचे आपने उसको वाज वर में कर देना है, डू डज को डिड में कर देना है, हैज़ हैव जहाँ लगा होगा वहाँ हैड कर देना है, विल को आपने वुड कर देना है, कैन को आपने कुड कर देना है। और अगर वाज वर लगा हुआ होगा तो फिर क्या करना है, इज़ एम आर को तो आप देख रहे हैं वाज वर में करना है, और अगर वाज वर होगा तो उसको किस में करेंगे, उसको आप याद रखना हैड बीन में करेंगे। जरा ये सेंटेंसेस देखें। मायरा सेड आई गो टू स्कूल। मायरा सेड दैट, आई प्रोनाउन है, ये तब्दीली भी मैं आपको बताता हूं कि आई को शी में कैसे किया गया है। गो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म किस में हुई, सेकंड फॉर्म में, वेंट टू स्कूल। और दूसरे सेंटेंस देखें, दे सेड वी वेंट एट वर्क। और अगर सेकंड फॉर्म होगी तो फिर वो किस में तब्दील होगी, फर्स्ट फॉर्म तो सेकंड फॉर्म में, और सेकंड फॉर्म कौन सी फॉर्म में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। दे सेड वी वेंट एट वर्क, दे सेड दैट दे हैड गॉन एट वर्क। वेंट को किस में किया गया, हैड गॉन, यानी सेकंड फॉर्म होगी तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, और अगर फर्स्ट फॉर्म होगी तो वो सेकंड फॉर्म में तब्दील होगी। कैन आपका कुड में होगा, मे आपका माइट में होगा। अब दूसरी तब्दीली जो मैं कह रहा हूं, प्रोनाउन की तब्दीली आपने कैसे करनी है। सो प्रोनाउन कैसे तब्दील होंगे, ये एक फार्मूला आप नोट कर लें, सन वाला फार्मूला है, SON, S फर्स्ट, O सेकंड, N थर्ड। फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, second person will change according to the object and third person will not change। अब सब्जेक्ट कौन होता है और ऑब्जेक्ट कौन होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, ये मैं समझा दूं। अच्छा, पहले आप समझ लें फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते कौन से हैं, सेकंड पर्सन कौन से होते हैं, और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं आई से रिलेटेड, आई और वी, ये दो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, आई माई मी, वी आर अस। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन सिर्फ एक ही है, यू, यानी यू यूर यू। और इसके अलावा जितने बाकी प्रोनाउन बचते हैं वो सारे के सारे कौन से होंगे, वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होंगे। अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी आई माई मी वी आर अस जहाँ कहीं भी आएंगे वो सब्जेक्ट के साथ तब्दील होंगे। और सब्जेक्ट कौन होता है, ये इस स्लाइड के आखिर पे जो दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं इन पर गौर करें। ही सेड टू हर आई लाइक कॉफ़ी, ही सेड टू हर। इसमें जो बोलने वाला होता है, जो स्पीकर होता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो लिसनर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। अब इसमें स्पीकर कौन है, ही, लिसनर कौन है, हर। तो सब्जेक्ट कौन हुआ, ही, और ऑब्जेक्ट कौन हुआ, हर। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है यानी आई माई मी जहाँ भी आएगा वो सब्जेक्ट के साथ तब्दील होगा, यानी बोलने वाले के साथ तब्दील होगा। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होगा, यानी वो हमेशा सुनने वाले के साथ तब्दील होगा। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन तब्दील होगा ही नहीं। अब इसी सेंटेंस को देखें, ही सेड टू हर आई लाइक कॉफ़ी, ही सेड टू हर आई लाइक कॉफ़ी। सेड टू को हटाकर टोल्ड लगा दें तब भी ठीक है, सेड को सेड रहने दें तब भी ठीक है, ये ऑप्शनल है। ही टोल्ड हर, कॉमर्स को हटा करके क्या लगाया, दैट लगाया। जब भी पीछे आप सेड लगा रहे हैं या टोल्ड लगा रहे हैं, कॉमर्स को हटा करके आपने दैट लाजमी लगाना है। अच्छा, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है कि नहीं है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मैं क्या कह रहा हूँ, किसके साथ तब्दील होता है, स्पीकर के साथ तब्दील होता है, यानी बोलने वाले के साथ तब्दील होता है, यानी सब्जेक्ट के साथ तब्दील होता है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, बोलने वाला कौन है, ही, इसलिए आई की जगह ही आया। अब दूसरी चीज़, लाइक कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या बताया, कौन सी फॉर्म में तब्दील होगी, सेकंड फॉर्म में तब्दील होगी, तो लाइक की जगह क्या लगा, लाइक्ड। पर्सनल प्रोनाउंस चेंज अकॉर्डिंग टू, अच्छा, इफ सब्जेक्ट ऑफ द कोटेड वर्ड इज in second person pronoun then it will change according to the object as I have told you people। अब इस सेंटेंस को फिर देखें, he said to her you look happy। he said to her में आप पहले मुझे ये बताएं सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है,
ऑब्वियसली सब्जेक्ट बोलने वाला स्पीकर ही है और ऑब्जेक्ट सुनने वाला हर है। यू लुक हैप्पी, अब यू जो है ये कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या बताया, किसके साथ तब्दील होगा? ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील होगा। ऑब्जेक्ट कौन है? सुनने वाला। सुनने वाला इस सेंटेंस में कौन है? हर, इसलिए यू की जगह यहाँ पर क्या आया हुआ है? शी आया हुआ है। कामस को हटा करके दैट लगा हुआ है। और लुक कौन सी फॉर्म है? लुक फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या बताया, कौन सी फॉर्म में तब्दील होगी? सेकंड फॉर्म में तब्दील होगी। तो सेकंड फॉर्म क्या है? लुक। तीसरा सेंटेंस देखें, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द कोटेड वर्ड्स इज इन थर्ड पर्सन देन देयर विल बी नो चेंज। मैं बता चुका हूं कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन तब्दील नहीं होगा। देखें ना, फर्स्ट पर्सन बताया सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ, और थर्ड पर्सन में तब्दीली नहीं होगी। इस सेंटेंस में देखें, ही सेड टू हिम शी हैज ऑलरेडी लेफ्ट। अब इनडायरेक्ट देखें, ही टोल्ड, सेड टू को हटाकर टोल्ड, हिम कामस को हटाकर दैट, शी कौन सा पर्सन प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन का क्या बताया कि वो तब्दील होगा या नहीं होगा? वो तब्दील नहीं होगा, शी उसी तरह आ गया। हैज़ हैव का क्या बताया? हैज़ हैव किस में तब्दील होगा? हैड में तब्दील होगा। और ऑलरेडी लेफ्ट उसी तरह आएगा। ये थे आपके असर्टिव सेंटेंसेस कि असर्टिव सेंटेंसेस को आपने इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। दो मेन चीज़ें आप देख रहे हैं, एक प्रोनाउन की तब्दीली आप देख रहे हैं और एक वर्ब की तब्दीली देख रहे हैं। प्रोनाउन आप देखें इस फार्मूला के तहत तब्दील कर रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जितने भी हैं, आई, माई, मी, वी, आर, अस, उनको आप सब्जेक्ट के साथ तब्दील कर रहे हैं। सब्जेक्ट बोलने वाला होता है। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, यूर, यू जो हैं, ये आप ऑब्जेक्ट के साथ तब्दील कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट सुनने वाला होता है जिससे बात की जा रही होती है। इसके अलावा जितने भी प्रोनाउन हैं वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, उनमें कोई तब्दीली नहीं होगी। ये चेंज ऑफ प्रोनाउन है। और चेंज ऑफ वर्ब जो है वो मैंने बताया कि इज एम आर वाजवर में हो गया, और वाजवर किस में हो गया? वो हैड बीन में हो गया। डू, डज, डिड में, हैज़, हैव, हैड में, विल, वुड में, कैन, कुड में, और जो है में जो है वो माइट में तब्दील हो गया। फर्स्ट फॉर्म आपकी सेकंड फॉर्म में तब्दील हो गई और सेकंड फॉर्म आपकी हैड प्लस थर्ड फॉर्म में हो गई। आप लोगों ने बुक से देखकर असर्टिव सेंटेंसेस को इन्हीं दो पॉइंट्स को ज़हन में रख करके प्रोनाउन तब्दील करना है और वर्ब तब्दील करना है और कामास को हटाकर आपने दैट लगाना है। ये काम आपने करना है। आपने बुक से देखकर असर्टिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है कि कैसे आप डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। देन इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर्स में हम अगले जितने भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं हम उनको एक ही लेक्चर्स में 8-10 मिनट के अंदर इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। ये मेन चीज़ है, अगर ये आपको समझ आ गई तो आगे वाले भी आपके लिए मुश्किल नहीं होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे हैप्पी।